آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سے لوگ ہیں جو ہم احناف پر یہ واویلا کرتے ہیں کہ یہ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اور شوافع حضرات جو ہے نا رفع الیدین کرتے ہیں اور ہم احناف رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ عام نمازوں میں تو رفع الیدین نہیں کرتے لیکن وتر اور عید کی نماز میں رفع الیدین کرتے ہو، تو گویا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پورا عمل نہیں کرتے۔ تو آج انشاءاللہ یہ ہم مسئلہ کلیئر کریں گے، اور رفع الیدین ہوتا کیا ہے، کب حضور علیہ السلام نے کیا تھا، اور اگر ہم نہیں کرتے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے یا کس وجہ سے نہیں کر رہے۔ اور جو حضرات ہم پر شوشہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، جیسے بہت سارے اپنے آپ کو اینکر کہلانے والے اور کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے، وہ آخر کس وجہ سے یہ واویلا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کے بارے میں حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو بھی ایسا ہی کرتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو بھی ایسا ہی کرتے، اور سجدے میں ایسا نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی یہ ایک حدیث نہیں، کئی حدیث مبارکہ ہے جن سے یہ استدلال ہوتا ہے، اور شوافع انہی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ نمازوں کے اندر رفع الیدین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ رفع الیدین جیسے عام نمازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ جو شوافع کی حضرات کی تقلید کرتے ہیں، اللہ اکبر تکبیر اولا ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تکبیر اولا میں اللہ اکبر کرتے ہوئے پھر جب وہ رکوع میں جاتے ہیں پھر بھی وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کہ رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے، رکوع سے اٹھتے پھر بھی اللہ اکبر کرتے، اسی طرح سجدے میں جانے سے پہلے اس طریقے سے، یعنی یہ مبارکہ ہوئی ہے۔ شوافع کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اکثر حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، آخری عمر میں آپ سے روایت ہے کہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤں کہ حضور علیہ السلام کون سی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ہماری یہ دلیل ہے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوائے تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر میں رفع الیدین کیا، اس کے بعد کوئی بھی رفع الیدین نہیں کیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، پہلے حضور علیہ السلام نے رفع الیدین کیا تھا، بعد میں یہ حدیث کیا ہے، منسوخ ہو گئی، اور ناسخ کون سی ہے، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، جو کہ سنن نسائی شریف میں اور یعنی حدیث مبارکہ کی کئی ایسی کتابیں ہیں جن میں یہ وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں یہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع الیدین کیا تھا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کنز المدفون میں کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفع الیدین کیا تھا نا، اس کی مین ریزن تھی، پتہ ہے کون سی؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے نا، تو جو کافر ہوتے تھے نا، کافر یا جن کو منافق کہہ لیں، وہ نام کے مسلمان ہوتے تھے لیکن کیا ہے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بغلوں میں بت رکھ کر آیا کرتے تھے۔ اب بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی کے مجتہد، آپ نے یہ الکنز المدفون میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے بغلوں میں بت لے کر آیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کیا کرتے تھے تاکہ ان کے بت گر جائے، اور یہ کیا ہے، سرے سے یعنی پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے اور یہ کافر ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رفع الیدین اسی لیے کیا جاتا تھا تو پہلی رکعت سے جب وہ اللہ اکبر کرتے تو وہ بت گر جاتے تھے، لیکن پھر یہ چاروں یعنی رکعت میں کیوں شامل ہوا؟ اب اس کے بارے میں علماء جواب دیتے ہیں کہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں شامل ہو جائے، کوئی ایسے ہوتے تھے جو دیر سے بھی شامل ہوتے تھے،
यानी दूसरी रकात में शामिल होते हैं, तीसरी रकात में शामिल होते हैं, इसीलिए ये क्या है, साबित रहा। अल्लाह ताला ने जिन इस्लाम को गलबा दिया, दीन इस्लाम छाता गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में रफुल यदैन को तर्क कर दिया। और यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्र में ये छोड़ दिया था। और इसीलिए इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो पैरोकार हैं, हनफी कहलाते हैं, उनके नजदीक रफुल यदैन करना ये क्या है, अब नहीं है। पहले था लेकिन बाद में क्या है, मनसूख हो गया। और नासिख मनसूख का हर किसी के लिए लाजमी होता है। आज मैं और आप देखते हैं हर कोई ऐरा गहरा नथु गहरा क्या होता है, मिंबर रसूल पर बैठकर बयान कर रहा होता है, यानी बयान करने के लिए आ जाता है। लेकिन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है, क्या है, एक मर्तबा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खतीब को देखा कि मिंबर पर बैठकर बयान कर रहा है। तो आपने फरमाया कि है खतीब, बता कि तुझे नासिख और मनसूख का इल्म है, यानी कौन सी ऐसी बातें थी जो पहले तो राइज थी लेकिन बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको मना कर दिया। अब इसको आसान से समझ लें, जैसे मैं आपको कहूं ना, भाई आज ये काम आपने करना है, मैं आपको क्या बोलूं, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोलूं, भाई ये काम आपने आज करना है, और कल मैं फिर बोलूं कि वो कल वाला काम जो मैंने बोला था ना, अब आपने वो नहीं काम करना। अब आप कौन सा काम करेंगे, जो पहले मैंने बोला था कि काम करना है वो वाला काम करेंगे, या बाद में जो मैंने मना कर दिया वो वाला काम करेंगे? यकीनन जी शऊर बंदा वही काम करेगा कि पहले जो बोला था करना था लेकिन बाद में मना कर दिया। अब तरजीह किसको होगी, मना वाले काम को होगी। इसीलिए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि बताओ कि तुम्हें नासिख और मनसूख का इल्म है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कुरान करीम फुरकान हमीद में हदीस मुबारका में पहले तो इनके काम करने का हुक्म था कि ये काम करने, बाद में इनका मना कर दिया गया कि आप ये कोई काम ना करें। तो उस खतीब ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि नासिख मनसूख का, मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, लेक्चर पढ़ा ही नहीं है कि नासिख मनसूख कहते किसको, मुझे तो नहीं पता। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मिंबर से नीचे हो जा, तुम मिंबर पर बैठने के लायक ही नहीं हो। क्या दीन का तुम इतना फायदा नहीं करोगे, बल्कि दीन का क्या उल्टा नुकसान कर जाओगे। दीन का फायदा नहीं, उल्टा नुकसान करोगे। जिसको नासिख और मनसूख का इल्म नहीं है, वो दीन को समझाने का हक ही नहीं रखता। आज यही बात है जो रफुल यदैन के कायल होते हैं ना, अगर शवाफे के मुकल्लिद है, तकलीद करते तब तो सही है, लेकिन जो 3 में न 13 में अपने आप को मुस्तहिद कहते हैं, वो इसीलिए कि वो दीन को परखते नहीं है, समझते नहीं है, दीन इस्लाम की घुट्टी में आया नहीं है, अपने आप को खुद बेसाख्ता कहते हैं। और जो कुछ कहते हैं ना कि हम रफुल यदैन करते हैं, वो भी पूरी हदीस पर अमल नहीं करते हैं। रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफुल यदैन करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अगर कमा हक को पढ़े ना, तो सजदे में जाते हुए, सजदे से उठते हुए भी रफुल यदैन करना है। लेकिन वो कुछ पे अमल करते हैं, कुछ पे नहीं करते, गोया कि अपनी नफ्स पे अमल करते हैं, अपनी ख्वाहिशात पे अमल करते हैं। अब वो कह ले कि भाई आप सजदे में जाते हुए उठते हुए क्यों नहीं रफुल यदैन करते, वो कहते हैं कि ये जो है ना वो मनसूख हो गया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आखिरी उम्र के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बयान की कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की आपको नमाज पढ़ के दिखाऊं जो बताया, आप जो अहनाफ पढ़ते वही हदीस मुबारका दोहराई और इसी तरीके से बताया कि इस तरीके से नमाज पढ़ना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है। और नमाज के हवाले से न शवाफे और अहनाफ के कसीर इख्तिलाफ देखा होगा। जैसे अहनाफ जो है ना अपने अल्लाह अकबर कहते हैं तो कानों तक हाथ लगाते अल्लाह अकबर, यानी कानों की लो तक हाथ लगाते अल्लाह अकबर कहते हैं। और जो शवाफे होते हैं ना वो यूं करते हैं अल्लाह अकबर, यानी कंधों तक उठाते हैं। अब ये भी हदीस है, वो भी हदीस है। अब इसमें कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा क्या है, जब सर्दी की रातें थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कंबल ओढ़ कर नमाज पढ़ी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कंधों तक हाथ उठाए अल्लाहु अकबर। तो जिन साहबा ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम कंधों तक उठाते, उन्होंने आगे रिवायत की और शवाफे जो इस बात पर यानी करते हैं कि हम यहाँ तक, ये भी हदीस मुबारक है। और इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलाम जब जब नमाज पढ़ा करते थे वो क्या है, कानों की लौ तक उठाया करते थे। अब इसमें क्या है कि आम इसके अलावा कानों की लौ तक, और अगर कोई मजबूरी है या सर्दी की वजह से अगर कोई कंधों तक उठाता है तब भी चल जाता है। और शवाफे इस तरह करते हैं तो अपने इमाम की तकलीद कर रहे हैं, और अगर अहनाफ कर रहे हैं तो अपने इमाम की तकलीद कर रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई करता है तो कर जाए। और रफुल यदैन के मसले पर हमारे
उलमा अहले सुन्नत ने माशाअल्लाह बेहतरीन ऐसा कलाम किया है कि आपकी सोच है। जैसे हजरत अल्लामा मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब और हसन रजा यलतरम साहब और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, और इसके अलावा जो दीगर अहबाब होते हैं ना, वो कहते हैं कि हनफी जो है ना, हनफी आम नमाजों में तो रफुल यदैन नहीं करते, लेकिन देखना जब ईद की नमाज पढ़ेंगे तो रफुल यदैन करेंगे, और जब वितर पढ़ेंगे तो रफुल यदैन करेंगे। मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कमा अकू हदीस पर अमल नहीं कर रहे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि हम आम नमाजों में रफुल यदैन नहीं करते, ईद की नमाज में और वितर में रफुल यदैन क्यों करते हैं। तो इसी तरीके से जिस हदीस से हमने ये इस्तेदलाल किया है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं से हदीस मुबारक और इसके अलावा कई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला से हदीस मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद की नमाज आज जो मुरवजा तरीके के मुताबिक हम पढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिर तक इसी तरीके से पढ़ी जाएगी। हम जो ईद की नमाज में रफुल यदैन करते हैं वो ये कि हदीस रसूल की वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर तक ईद की नमाज इसी तरीके से पढ़ी जाएगी। और जो आम नमाजों में नहीं करते वो इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किया, बाद में मना कर दिया और बाद में नहीं किया। अब हम नई वाली बात पर अमल करते हैं, पहले किया इस पर भी हमारा यकीन है, लेकिन अब ये मनसूख हो गया। और नासिक कौन सी? हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस है। और आपने बुखारी शरीफ में ही एक हदीस मुबारक सुनी है कि पहले दौर में अल्लाह ताला ने ना हर नमाज 2-2 रकात फर्ज की थी, 2 रकात फजर, 2 रकात जोहर, 2 रकात मगरिब, 2 रकात इशा। इसी तरीके से हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है, आप सुन चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही आती गई, तो अल्लाह ताला ने फिर कहे नमाज यानी फरमा दी कि 2 रकात फजर में है, 4 रकात जोहर में है, इसी तरह 4 रकात असर में है, 3 रकात मगरिब में है और इसी तरह 4 रकात इशा में है। फिर ये सारी तरतीबात आई तो और ये क्या है, ये नाजिल हो गया। अब जो 2 रकात वाला तसलसल कायम रखा गया ना, तो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इसी तरीके से जो शरई मुसाफिर बन जाता है ना, आज शरई मुसाफिर यानी 92 किलोमीटर से आगे आप चले जाएं तो 4 रकात वाले भी आप कितनी 2 रकात पढ़ते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो फर्ज किया था ना पहले 2 रकात, ये उसकी याद रखी गई थी कि कभी कभार हम पर 2 रकात नमाज फर्जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात का हुक्म दिया था। इसीलिए क्या है, हम शरई मुसाफिर है तो 2 रकात पढ़ेंगे, जोहर 4 है तो 2 पढ़ेंगे, असर 4 है तो 2 पढ़ेंगे, इसी तरह इशा 4 है तो 2 पढ़ेंगे। और उलमा फरमाते इसीलिए कि जो आज हम ईद में या वितर में रफुल यदैन करते हैं ना, वो इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को बरकरार रखते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफुल यदैन किया था। क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन किया था, इसीलिए हम रफुल यदैन कर रहे हैं। और फिर सबसे ज्यादा परफेक्ट जो हमारे पास दलील है वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर दौर तक क्या है, रफुल यदैन रहेगा और लोग करते रहेंगे। ये ऐसी मेन वजूहात है जिसकी बिना पर हम अहनाफ रफुल यदैन को तर्क कर देते हैं, लेकिन जो करते हैं शवाफे के मुकल्लिद हैं तो हम उन पर कोई नहीं करते कलाम। क्यों? वो अपने इमाम के मुकल्लिद हैं, वो अपने इमाम की तकलीद करें, और हम अपने इमाम के मुकल्लिद हैं तो हम क्या है, अपने इमाम की तकलीद करते हैं।